Hey, hello everyone. This is Aisha, and right now you are watching my YouTube channel. Today we are going to continue with the Maharashtra Board History Standard 9th, Chapter number 3, India's Internal Challenges. Okay, before I begin with my lecture, I request you all to please press the subscribe button and the bell icon next to it, which is very important to get to know when we post our next video. Okay, so let's get going. So the last lecture in your part 1 we had completed already Operation Blue Star. Okay, now we are going to begin. We'll start with issue concerning Northeast India. Okay, now Northeast India consists of 8 states of Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, and Tripura. International borders of India touch each of these states to varying extent. First, I'll read the paragraph and then I'll explain to you all in detail. Okay, these states are different with respect to ethnicity, language, and cultural diversity. The first Prime Minister of independent India took the lead in bringing the tribes living in these areas into the mainstream of the country. Now, my dear children, issues concerning नॉर्थ ईस्ट इंडिया. ओके, दिस इज अ टॉपिक विच वी आर गोइंग टू इलेबोरेट टुडे. हम लोग ये टॉपिक अच्छे से पढ़ने वाले. ओके, सी माई लेक्चर्स आर मेड फॉर ऑल द मीडियम्स ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज इंग्लिश, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती, विच एवर द मीडियम्स यू आर स्टडिंग. आप लोगों के लिए मेरा लेक्चर बना हुआ है. सो आई एम यूजिंग बाईलैंग्वेज, थोड़ा इंग्लिश भी थोड़ा हिंदी भी, सो दैट आप लोग इंग्लिश भी अच्छे से समझ सको एंड हिंदी में आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ सको. ओके, नाउ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट्स कंसिस्ट, अभी जैसे कि आप लोग देख रहे हो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट कंसिस्ट 8, अब टोटल 8 स्टेट्स इन लोग कंसिस्ट करते हैं. जैसे कि आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा. ओके, ये 8 स्टेट्स उनमें इन लोग इसमें आता है. ओके, नाउ इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ इंडिया टच ऑफ द स्टेट्स ऑफ वेरिंग एक्सटेंस. अभी इंटरनेशनल बॉर्डर्स में कौन सा आ गया, लाइक बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान. अभी इन सभी कंट्री से ना जो स्टेट्स है ना उसका बॉर्डर मिलता है. इन सभी कंट्रीज़ है, जैसे इंटरनेशनल हमारी कंट्रीज़ है, जैसे म्यांमार, मैंने जैसे आपको मैंने बताया म्यांमार हो गया, भूटान हो गया और बांग्लादेश हो गया. ये सभी स्टेट्स इस कंट्री के बॉर्डर से कहीं ना कहीं मिलते हैं. ओके, नाउ दिस स्टेट्स these states are different with respect to ethnicity. Ethnicity means what? Ethnicity means what? Ethnicity means different status or different culture. Yani some people they believe in other god or different gods. Okay, or some of them speaks in different language, some have their own culture, some have their own tradition. ठीक है, इन सबको बोलते हैं क्या? एथनिसिटी बोलते हैं, लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी. ओके, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. नाउ हम लोगों ने जैसे पहले भी पढ़ा था, दिस आई थिंक आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माई पार्ट वन का जो मेरा लेक्चर है, अगर आप लोग सुनोगे तो आपको पता चलेगा. उसमें आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन यू जो नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है भैया, थोड़े ये लोग ट्राइबल टाइप के पीपल है, लाइक इनका ट्राइबल अलग है. जैसे आदिवासी जैसे बोलते हैं ना, वो ये लोग ट्राइबल टाइप के पीपल है. ठीक है, सो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन ट्राइबल लोगों को इनको बहुत यूनाइट करने की कोशिश की हमारे मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री से. उन्होंने हद से ज़्यादा इस नॉर्थ ईस्ट वालों को कोशिश की कि वो हमारे कंट्री के मेन स्ट्रीम में इनको ला सके. ओके, सो अरुणाचल, सॉरी, so in 1954 he formed Northeast Frontier Agency, that is NEFA. Okay, this area comprising of territories on Sino-Indian, now Sino-Indian border बोले तो क्या, Sino-Indian बोले तो India China border, and the tribal areas towards the north of Assam. Nehru took the position of bringing about the development of hundreds of tribes in these parts while preserving their culture. Now children, Nehru, for first Prime Minister of India, that is Pandit Jawaharlal Nehru, now he took an initiative of bringing about this people together. इन लोगों को, ट्राइबल पीपल को, इनको यहाँ पर शहर में या मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत कोशिश की. बट कैसे? प्रिजर्विंग देयर कल्चर, यानी विदाउट डिस्टर्बिंग देयर कल्चर. किसी भी तरह उनका जो कल्चर है, उनका जो पहनना ओढ़ना तौर तरीका है, वो डिस्टर्ब नहीं करना है. ठीक है, उस तरीके से भी उन्होंने लाने की
कोशिश की उनको, ठीक है। नाउ स्पेशल प्रोविंशंस हैव बीन मेड विथ रेस्पेक्ट टू दिस एरियाज इन 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल प्रोविंशंस, ओके, 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू माइट बी नोइंग देयर आर 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपको पता है कि नहीं पता नहीं, ये सिविक्स में होगा आप लोगों के। देयर आर 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें से 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे प्रोविंशंस, बहुत सारे सुविधाएं नॉर्थ ईस्ट वालों को दी गई है। फॉर एग्जांपल, अगर नॉर्थ ईस्ट की जगह को इग्नोर करके, नॉर्थ ईस्ट की जगह को छोड़ के कोई भी यहाँ से इंडियन अगर नॉर्थ ईस्ट में जाता है तो वो वहाँ पर प्रॉपर्टी परचेस नहीं कर सकता। हाँ, वो लीस्ट पे रह सकता है, रेंट पे रह सकता है, लैंड रेंट पे प्रॉपर्टी उठा सकता है, बट वो वहाँ पर परचेस नहीं कर सकता, वहाँ पर कुछ भी खरीदी नहीं कर सकता। सो ये सारे जो शेड्यूल थे वो क्यों बनाए गए थे? जस्ट टू प्रोटेक्ट दिस पीपल, ओके, दिस ट्राइबल पीपल। इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन लोगों के बचाव के लिए बनाए गए थे, ओके। नाउ then in 1965 the responsibility of administrating this area was given to the Ministry of External Affairs. Now in 1965, okay, the responsibility was given to the Ministry of External Affairs, यानी इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्ट्री थे तो उनको वहाँ की देखभाल करने का काम दे दिया था, ओके। द नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 was supposed to advise the central government regarding aspects of common interest in the economic and the social spheres in a state, transport, electricity, flood control, etc. अभी नॉर्थ ईस्ट जो एरिया है, ठीक है, अभी वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होता है, ब्रह्मपुत्र, तो और एवरी ईयर वहाँ पे फ्लड आता है, एवरी ईयर वहाँ पे फ्लड होता है। बट हमको ये सारी बातें बहुत कम पता चलती है, भाई, बिकॉज वहाँ पर ज़्यादा मीडिया पहुँच नहीं पाता है। मीडिया दूसरे काम में बहुत जल्दी यहाँ वहाँ पर पहुँच जाता है, बट जहाँ पे जब पहुँचना चाहिए वहाँ पर मीडिया हमारा नहीं पहुँच पाता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है वो हमको बहुत कम पता चलता है। बट एवरी ईयर वो एरिया फ्लड होता है। देयर इज़ लॉस ऑफ लाइफ इन आसाम, प्रॉपर्टी, ये लॉस ऑफ मनी, बहुत बहुत कुछ वहाँ पर नुकसान होता है, अंडरस्टैंड, ओके। बट ये सारी बातें हम लोग को नहीं पता चलती है। सो एनीवेज, द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1971 was supposed to advise the central government. They used to advise to the central government regarding what the aspects of common interest in economic and social spheres, interstate transport, about electricity, and also about flood control, okay. Now next we are going to talk about Mizoram. The tribes in northeast India have an ancient history. When India became independent, the government gave administrative autonomy to the districts of the Mizo majority areas of Lusai Hills. Okay, now Mizoram. Now अब ये जो है, there are hills. अभी यहाँ पे hills है मिज़ोरम में ना, बहुत सारे hills है, लाइक गाजो हो गया। अगर आप लोग देखोगे मिज़ोरम का ये मैप वगैरह में अगर देखोगे तो गाजो हो गया, खासी होगा। वैसे एक लुसाई हिल भी है, कौन सा है, लुसाई करके एक हिल है, ठीक है। नाउ देर द पीपल आर, वहाँ के लोगों को लुसाई हिल से, ठीक है। अभी वहाँ के लोगों को, मिज़ोरम के लोगों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ की ट्राइब को क्या बोला जाता था? मिज़ो ट्राइब, दैट इज नोन एज व्हाट, मिज़ो पीपल, एज इज कॉल्ड एज मिज़ो ट्राइब। व्हेन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1954, द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया grew. First, I'll read the paragraph, then I'll explain you in detail. Mizo leaders started demanding an autonomous Mizo province. In 1959, the territory of Mizoram experienced a severe drought. During the famine, Mizo leader Lal Denga served the common people a lot. Now, first thing that we have learned that वहाँ से मिज़ोरम में there are hills like गाजो है, खासी, वैसे लुसाई भी एक हिल है, और वहाँ के रहने वाले लोगों को मिज़ो पीपल कहा जाता है, मिज़ो ट्राइब्स कहा जाता है। नाउ चिल्ड्रन, आई टेल यू, जब ब्रिटिश हमारी कंट्री को छोड़ के गया था, ठीक है, जब ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री को छोड़ के गए थे, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, दैट इज़ रीऑर्गेनाइजेशन। इसका मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके मतलब समझा रही हूँ, ओके। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। जब ब्रिटिश हमारी कंट्री को छोड़ के गया था, सो दैट टाइम आवर कंट्री इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। वन इज़ इन इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहा था, वी पीपल, ओके, इंडिया। सेकेंड वन इज़ इन पाकिस्तान, एंड द थर्ड वन इज़ प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे राजा लोग राज करते थे, अंडरस्टैंड ना। तो जैसे, बट आफ्टर व्हेन सरदार वल्लभ भाई पटेल जब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, ओके, तो उनकी वजह से कहीं प्रिंसली स्टेट जो थे ना वो इंडिया में वापस आ गए,
अंडरस्टैंड, जो उनकी वजह से तो वहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, तो उस कमीशन का नाम है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. ओके, दैट वाज अपॉइंटेड इन द ईयर 1954. द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल इन दिस एरिया ग्रू. नाउ एज सून एज ये रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, अभी थोड़े थोड़े टाइम से एक्सपेक्टेशन, जो भी इन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी ये बढ़ने लगी. अभी ये लोग क्या बोलने लगे कि हमको हमारा अलग कंट्री बना के दो, हमको हमारा अलग प्रोविंस चाहिए, हम लोगों को इसके जुड़ के नहीं रहना है. ठीक है, ऑफ द पीपल मिजो लीडर्स स्टार्टेड डिमांडिंग ऑफ ऑटोनोमस मिजो प्रोविंसेस, हमको अलग करके दो करके. इन 1959 द टेरिटरी ऑफ मिजोरम एक्सपीरियंस सर्व ड्रॉप. ड्रॉप बोले तो क्या, सूखा पड़ना. ठीक है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, सूखा पड़ना, जहाँ पे पानी वगैरह की वजह से सूखा पड़ना, उसको बोलते हैं ड्रॉप. एंड द मिजो ड्यूरिंग दिस फैमाइन, अभी ड्रॉप जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पे फूड की भी ग्रोथ कैसी होगी, तो वहाँ पे खाना भी नहीं है. ओके, मिजो लीडर लाल डेंगा सर्व्ड द कॉमन पीपल अ लॉट. नाउ लाल डेंगा ही वाज अ पर्सन हु सर्व द कॉमन पीपल लॉट. ये इन्होंने एक गरीब लोगों की, जो आम लोगों की, मैंगो पीपल की, जो आम लोग थे वहाँ पे उनकी बहुत मदद की और उनके दिल में जगह बनाने की कोशिश की. ओके, इन 1961 लाल डेंगा established an organization called Mizo National Front, that is MNF. He asked for Greater Mizoram, an independent nation, carved out the Tripura, Manipur and Mizo majority areas from Lusai Hills. In March 1966, Mizo National Front announced the emergence of independent Mizoram. Prime Minister Indira Gandhi handled the situation firmly and suppressed the rebellion. Now, अभी ये लोग क्या करने लगे बाद में, लाल देंगा इस्टेब्लिश. उन लाल देंगा ने क्या किया, इन्होंने आम लोगों की मदद करके उनका दिल तो जीता. फिर उसके बाद में उन्होंने एक अपना ही नेशनल फ्रंट, अपना ही ग्रेटर मिजोरम, एक अपना ही इंडिपेंडेंट नेशन वो किया, बना दिया. ठीक है, जहाँ पर वो इंडियन गवर्नमेंट की सुनते नहीं थे, अपना चलाते थे, अपनी मिलिट्री, अपनी पुलिस, अपना सब कुछ चलाते थे. ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें, दिस वॉज नॉट बेरेबल ना. तो जब हमारी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, व्हेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी शी बंडल, देन शी हैंडेड दिस सिचुएशन फर्मली एंड सप्रेस द रेबिलियन. इन्होंने ये सारी चीज़ों को स्टॉप किया. व्हेन द सिचुएशन काम डाउन इन 1972, द मिजो मेजोरिटी एरिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी मीन्स वॉट, वो जब कोई स्टेट यूनियन टेरिटरी बन जाता है मीन्स इट वाज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, उसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी. तो मिजोरम को भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया. इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जो बेटे थे, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी had agreement with Mizo National Front and Mizoram was given the status of a full-fledged state. लाल देंगा became the chief minister of state. जिन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी, that is लाल देंगा, जिन्होंने कॉमन पीपल की वक्त पर, बुरे वक्त पर हेल्प की थी, he became the chief minister of that state. Okay, all of you understood? Now the next come is Nagaland. Okay, now again द नागा ट्राइब. अभी जैसे कि मिजोरम की मिजो ट्राइब थी, अभी वैसे ही नागालैंड की नागा ट्राइब है. ओके, द नागा ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ नोन एज द मार्शल ट्राइब. मार्शल ट्राइब बोलो तो क्या, जहाँ पे मार्शल आर्ट होते हैं ना, लड़ाई करने वाले योद्धा लोग. ठीक है, उसको बोलते हैं मार्शल. ठीक है, योद्धा ट्राइब थे. द नागा ट्राइब हैड सेटल इन ईस्टर्न हिमालयाज, द नागा हिल्स बॉर्डर्स एरियाज ऑफ आसाम एंड म्यांमार. In 1946, some educated Naga youth established an organization called Naga National Council, that is NNC. Later, they made a demand for an independent state of Nagaland. Now again, the same thing, they are also demanding for an independent state. ये लोग भी अलग जाने की सोच रहे हैं, लोग भी इंडिपेंडेंट स्टेट का डिमांड करने की सोच रहे हैं, नागालैंड वाले भी. ओके, नाउ द नागा ट्राइब, अभी हम सी ये देखो, द नागा ट्राइब इन नॉर्थ ईस्ट एशिया. अभी जैसे कि आप लोग जानते होंगे, हिमालय स्टार्ट्स फ्रॉम कश्मीर एंड एंड इट नॉर्थ ईस्ट एशिया, यानी आसाम में, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ वो जगह पे एंड होता है वो. ठीक है, हिमालय स्टार्ट होता है कश्मीर से और एंड होता है यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में आके एंड होता है आसाम अरुणाचल प्रदेश में. ठीक है, द नागा ट्राइब हैज सेटल्ड इन ईस्टर्न हिमालयाज एंड नागा हिल्स बॉर्डर्स एरियाज ऑफ आसाम एंड म्यांमार. ठीक है, इन 1946 some educated Naga people, they established their organization. ठीक है, that is called as Naga National Council. Later they made a demand for independent state of Nagaland. They were led to Angami Japofizo. In 1954, the Naga National Council announced the establishment of an independence federation of Nagaland. In 1955, skirmishes happened. Now skirmishes happened means what, fights.
झगड़े लड़ाई हैपन बिटवीन द लोकल नागास, अभी वहीं पर ही लोकल नागास और सोल्जर्स ऑन फॉर आसाम राइफल्स। अभी आसाम राइफल्स बोले तो क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। राइफल आसाम राइफल्स बोले वहाँ पर मीन्स इट मीन्स अ पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी। मिलिट्री एक्शन वॉज टेकन टू सरप्राइज दिस क्रिम्स। अभी मिलिट्री एक्शंस वे टेकन, ये फाइट को रोकने के लिए, ये फाइट को बंद करने के लिए मिलिट्री एक्शंस भी लिए गए। ओके, several rounds of discussions took place between the central government and नागा नेशनल काउंसिल। बहुत सारी several rounds of discussion, बहुत सारी मीटिंग इन दोनों के बीच में हुई। किन के बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द नागा नेशनल काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव द नागा majority territory the status of union territory. Nagaland was made full-fledged state on 1st December 1963 by putting together the Naga majority territory a part of Tonsam. Okay, इनको भी यूनियन टेरिटरी का स्टेटस एक दर्जा दिया गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट कम इज आसाम। In 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Students' Union and Assam Ganan Sagram Parishad over the question of dominance in Assam in Bengali migrants. अभी ये मेरी बात ध्यान से सुनो। Children, you might be knowing in 1971, शायद आप लोगों को नहीं भी पता होगा, in 1971 there was a liberation war of Bangladesh. एक वॉर, लिबरेशन वॉर हुआ बांग्लादेश का, ठीक है। सो ड्यूरिंग दैट वॉर बहुत सारे बांग्लादेशीज ऐसे थे जो हमारे इंडिया में घुस गए, जो हमारे इंडिया में रेफ्यूजीज जैसे घुस गए। अभी उन लोगों को वहाँ पर उनके देश में कोई तरीके की प्रॉब्लम हुई रहेगी, तभी वो हमारे इंडिया में इलीगली घुस कर रहने लगे, ठीक है। अभी हमारा कोई एरिया है, ठीक है, अभी हमारा एक एरिया है, अभी वहाँ पर कहीं के भी बाहर के लोग हमको बिना बताए आके रहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे क्रश होगी, बराबर रहने लगेंगे इलीगली आके। आप लोग अगर कोई भी हमारे पास में आके रहने लगेगा तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम होगी, क्रश होगी। तो वहाँ पे थ्रू आउट दिस उन लोगों ने, यहाँ पे ये जो लोगों ने, ठीक है, दैट इज़ ये जो तो आप लोग देख रहे हो, दैट इज़ ये परिषद ओवर ये वाला डोमिनेंस ऑफ आसाम ऑफ बंगाली माइग्रेंट्स, मतलब गो थ्रू दिस बंगाली बांग्लादेशी फ्रॉम आसाम हैज़ टू बी थ्रोन आउट इलीगली। जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ से बाहर निकालो, भगाओ, ठीक है। सो इन 1985 प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, सेंट्रल होम मिनिस्टर शंकरराव चौहान एंड आसामसी लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो साइन एन अकॉर्ड। अभी अकॉर्ड मीन्स क्या? अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट। दे साइन एन एग्रीमेंट। इट वॉज डिसाइडेड टू सेंड बांग्लादेशी citizens who had infiltrated, okay, infiltrated means what, illegally जो आए in Assam back to their original places। ऐसा बोला गया है कि इन लोगों को जो आसाम, जो बांग्लादेश से यहाँ पर इलीगली घुस गए, आके रह रहे, ओके, इनको अपने अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, उनकी जगह पर, उनकी कंट्री पर भेज दिया जाए। इन 1986 elections were held for Assam Legislative Assembly. Elections were held and Praful Kumar Mohanto of Assam Gana Parishad became a न्यू चीफ मिनिस्टर। वहाँ पर उनके विधानसभा का इलेक्शन हुआ एंड देन प्रफुल्ल महतो ही अपॉइंटेड हैज अ न्यू चीफ मिनिस्टर। ओके, ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकेम पॉसिबल टू इस्टेब्लिश पीस इन आसाम। इस वजह से देयर वाज पीस इन आसाम। येट हमारे देश में अभी भी बांग्लादेशी, मुंबई में भी बांग्लादेशी अभी भी चुपचाप चुपके से इलीगली रहते हैं। अंडरस्टैंड? अभी तक वो लोग यहाँ से गए नहीं हैं, ठीक है, इतनी कोशिशों के बाद में भी। नाउ अरुणाचल प्रदेश इन 1954 NEFA, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी। ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है, देखो, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, NEFA, okay, right? NEFA was created in 1972. It began to be called as Arunachal Pradesh. It began to be called अरुणाचल प्रदेश रीजन ऑफ राइजिंग सन। अभी अरुणाचल प्रदेश को रीजन ऑफ राइजिंग सन बोला गया है। वाई? बिकॉज इंडिया में जो पहले सूरज सुबह होती है, सूरज जब उगता है, सबसे पहले जो सुबह होती है वह अरुणाचल प्रदेश में ही होती है। बिकॉज वो इंडिया के ईस्ट साइड में आता है, यू नो ना, सनराइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सो दिस अरुणाचल प्रदेश इज कम्स इन द ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो सबसे पहले सुबह जो होती
होती है वो अरुणाचल प्रदेश में होती है, तो उसको बोला गया ऑन 20th February 1987 इट गॉट द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड स्टेट. During the period from 1960 to 2000, Northeast India has progressed towards a more mature democracy. Now, in this period, in last chapter, you have studied the events happened after 1960s. Okay, now we are talking about the period of 1960 to 2000. Many mature changes have been took place in the democracy. लोग बहुत तरीके से mature हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, एजुकेशन में, साइंटिफिकली, टेक्नोलॉजिकली इन लोग सब बहुत आगे बढ़ गए. दिस एरिया ऑफ एंड पार्ट ऑफ द प्रोग्रेस थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एक्सेट्रा. ओके, थैंक यू.